Hello, students. Good morning. This is Mr. Pizatitis. Today we are going to discuss about short answer type question. Here is from 30 to 40 words. Okay, so this is your Flamingo book and chapter number 1, the last lesson. Okay, from this chapter we will discuss about 10 question and then after we will discuss almost there are 30 questions of short questions and answer and just I want to remind you about throw the question answer to the chapter. Okay, so already you have seen the video that made for summary of this chapter. So anyway, so these are short questions, and now just we have to remember it. Why were some elderly person occupying the back benches that day? Okay, so either this question would come like this: who occupied the back benches in the classroom on the day of the last lesson, and why? So here is the answer. You have to remember. Okay, when the boy entered the class, then he has seen some elder villagers. They have sat on the back side of the bench. So what was the reason? Okay, so you may know that the main hero of this chapter is Mr. M. Hamill. Okay, Mr. M. Hamill. So he was the French teacher. Hmm. So the elderly village occupied the back bench in the classroom in the day of the last lesson. They did this show their affection for French language and pay respect to the teacher मिस्टर एम हैम्बल. तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे फ्रेंच जो है वो जैसे क्लासरूम के अंदर आता है और तभी देखता है कि पीछे पीछे का जो बेंचेस है कुछ गांव वाले आकर के वहाँ पे बैठे हैं. तब उनको समझ में नहीं आ रहा था कि ये लोग क्यों बैठे हैं. बट नाउ हियर इज आंसर. वो क्यों वहाँ पे बैठे थे? क्योंकि वो विशेष रूप से फ्रेंच लैंग्वेज को प्रति उनका अफेक्शन क्या है उसको दर्शाना चाहते थे. और जैसे जो वहाँ का जो टीचर है जो 40 इयर्स तक वहाँ पे सेवा किया, जिसका नाम है मिस्टर एम हेम्बल, उसके प्रति उनका रेस्पेक्ट को अदा करने के लिए, दर्शाने के लिए वो वहाँ पे बैठे थे. सो वाई डिड फ्रेंच नॉट वांट टू गो टू स्कूल दैट डे? फ्रेंच क्यों स्कूल जाना नहीं चाहता था उस दिन? फ्रेंच डिड नॉट वांट टू गो टू स्कूल दैट डे as he has not prepared his lesson on practice on participles. His French teacher would certainly scold him for this. So French wanted to avoid going to school. जैसे कि स्वाभाविक बात है, उसको अपना लेसन में पार्टिसिपल्स करना चाहिए था और वो प्रिपरेशन नहीं था और इसी के चलते वो स्कूल को अवॉइड कर देता है, स्कूल जाने की मन नहीं होता है. What did French wonder about when he entered the class that day? So जब फ्रेंच क्लास के अंदर पहुंचता है तो किस बात को देख करके आश्चर्यचकित हो जाता है? When French entered the class that day, he was expecting a second from Mrs. Hamill. He spoke very kindly, uh, scolding from Mr. Hamill. He spoke very kindly to French and asked him to sit. French also wondered at the presence of senior villagers occupying backbenches of the क्लास. तो जैसे वो क्लास के अंदर जाता है तो देखता है कि वहाँ पे उसके कुछ गांव के कुछ बुजुर्ग लोग वहाँ पे बैठे हैं और एम हेमल जो फ्रेंच का टीचर है वो उनको स्कोल्ड करने के बजाय वो क्या करते हैं, उनको जाकर के आराम से बैठने के लिए कहते हैं. वाई डिड एम हेमल रोट विवा ले फ्रांस
ऑन द ब्लैक बोर्ड। तो विवा ले फ्रांस ये जो शब्द है उन्होंने मिस्टर हैमेल एम हैमेल क्यों बोर्ड में लिखा था? सो एम हैमेल रोट विवा ले फ्रांस ऑन द ब्लैक बोर्ड टू शो his love for his country as well as for the French language. In addition, he was displaying his resistance of the German occupation of France. तो यहाँ पे आपने जो फ्रेंच लैंग्वेज के प्रति उनके मनोभाव और उनके प्रेम कितने ज़्यादा है उसको शो करने के साथ साथ और उसके द्वारा वो ये भी कहना चाहते हैं कि जर्मन ऑक्युपाइड के द्वारा हमारा फ्रेंच का जो लैंग्वेज है उसमें कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। We have all got great deal to reproach ourselves with said एम हैमेल कमेंट, यानी एम हैमेल ने जो ये शब्द को कहा तो उसके ऊपर आपको एक एक कमेंट करने हैं। क्या था वो? बच्चों आप सभी कौन सी साल में आया था ये सभी आप यहाँ पे देख ही रहे हो। एम हैमेल सेड दिस इज आस मोस्ट ऑफ द पीपल ऑफ अल्सेस could neither speak nor write in French. The parents of students prefer to put them to work to earn money, and M. Hamel himself did not give much importance to learning as it demanded. तो यहाँ पे एक चीज़ को वो याद करते हैं, एक चीज़ को वो कहते हैं कि लोग जो है यहाँ के मतलब अपनी खुद की भाषा ही है। आप सोच करके देखिए, अगर आपकी भाषा हिंदी है और हिंदी ढंग से आपको लिखना पढ़ना नहीं आता है तो क्या सोचा जा सकता है। और यही बात यहाँ पे हो रहा है। यहाँ के लोग फ्रेंच है लेकिन उनको अपनी खुद की मातृभाषा भी ढंग से पढ़ना लिखना नहीं आता है। उस बात के प्रति वो दुख जताते हैं और साथ ही साथ और बच्चों को स्कूल नहीं भेजते हैं और उसके बजाय उनको और कुछ काम के लिए भेज देते हैं। ये सभी बारे में यहाँ पर वो कहते हैं। सो हाउ डिड एम हैमेल डिस्प्ले हिज लव फॉर फ्रेंच लैंग्वेज? तो ये क्वेश्चन दूसरी प्रकार भी आ सकता है। व्हाट शो एम हैमेल लव फॉर द फ्रेंच लैंग्वेज? M. Hamel showed his love for the French language by telling the student that the French language was the most beautiful language in the world, clearest and the most logical. इसके द्वारा वो अपने बच्चों को और अपने स्टूडेंट्स को वो यही मतलब दिखाना चाहते थे कि फ्रेंच लैंग्वेज जो है वर्ल्ड का सबसे अच्छा और क्लियर और लॉजिकल लैंग्वेज है। बहुत ही सुंदर लैंग्वेज है, बहुत ही सरल लैंग्वेज है। What was the bulletin board news that caused a change in the school? What had been put off bulletin board? देखो क्वेश्चन इस तरह से घूम के आता है और आप इसको ध्यान से देखना। A news had been put up on the bulletin board stating that only German should be taught in the school of Alsace and Lorraine from the next day. जैसे फ्रेंच जो है वो क्या कर रहा था, स्कूल की तरफ आ रहा था, तभी उसने देखा टाउन हॉल के सामने एक बुलेटिन बोर्ड में कुछ लिखा है और लोग वहाँ पे भीड़ है। तो वहाँ पे क्या लिखा था? वहाँ पे ये लिखा था कि उसमें यही लिखा था कि मतलब नेक्स्ट डे से अभी सिर्फ जर्मन भाषा ही स्कूलों में पढ़ाई जाएगी। ओके। Whom did M. Hamel blame for French's inability to answer his question? Or who did M. Hamel blame for the neglect of learning to the part of the boy's life French? तो M. Hamel blamed मतलब M. Hamel यहाँ किसको ब्लेम करता है? उस लड़का के बारे में। So M. Hamel blamed that habit of the people of Alsace of putting off learning for tomorrow and not sending their children to school regularly. He also blamed himself for neglect learning boys like French. तो यहाँ पे बच्चों को स्कूल ना छोड़ करके और दूसरे काम पे पेरेंट्स भेज देते थे
और हमेशा कल की बात करके कई बातें टाल देते थे, इसके बारे में वो दर्शाते हैं और साथ ही साथ वो अपने आप को भी थोड़ा दोषी मानते हैं, क्योंकि कई समय में बच्चे जैसे छुट्टी मांग लिया तो वो उनको भेज दिया करते थे। What was unusual about M. Hammel's dress on his last day in the school? ओके, सो उसका ड्रेस में क्या परिवर्तन था, जैसे वो आखिरी का दिन जो था, तो ये बात सबको पता है कि एम हेमल had put his ceremonial clothes on his last day in the school. He was wearing a beautiful green coat, a frilled shirt, and a little black embroidered silk cap. तो ये ड्रेस उन्होंने पहन रखा था जो मैं अभी आपको पढ़ के बताया, और ख़ास करके ये पेरेंट्स मीटिंग में या फिर कोई प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन के डे में उन दिनों में वो पहना करते थे। लेकिन जैसे आज ये पहन रखे हैं तो इसे देख कर के भी और फ्रेंड्स जो है थोड़ा ताज्जुब हो जाता है कि आज टीचर क्यों इस प्रकार का ड्रेस पहने हैं। तो स्टूडेंट्स, ये तो था आपका 1 से लेकर के 9 तक का क्वेश्चन आंसर। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं 10 से लेकर के 20 तक का क्वेश्चन आंसर, फिर ऐसा शॉर्ट क्वेश्चन आंसर बताऊंगा आपको। और बाकी ध्यान रखिए, जो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है, अगर समरी आपको अच्छा से याद है ना, तो आपको फिर लॉन्ग क्वेश्चन आंसर देने में कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम यहाँ पे छोटी आंसर की होती है, छोटे आंसर जो है एग्जैक्ट देना पड़ता है। अगर छोटे आंसर को एग्जैक्ट आंसर नहीं देते तो उसमें नंबर नहीं मिलता। बड़े आंसर तो आपको अगर चैप्टर का समरी याद हो या चैप्टर के बारे में कुछ यदि आपको याद हो तो आप उसको क्या कर सकते हैं, बना करके लिख सकते हैं, कुछ नंबर पा सकते हैं। इसलिए मैं आपको विशेष रूप से छोटे क्वेश्चन आंसर का प्रिपरेशन कराऊंगा। थैंक यू। may God bless you for watching this video.